सर पवन जी आ जाइए। मैम आप ऊपर आ जाइए। एक्सक्यूज मैडम आ रही हैं। पीछे होना सर, जरा जरा पीछे होना सर, उल्टा है। यहाँ देखेंगे, यहाँ लुक एट सर। Secretary General of the Vietnam UNESCO Federation. Motivated by a deep love for his country and a connection to the spiritual world within traditional Vietnamese beliefs, combined with the scientific thinking of an intellectual, artist Chu Baohui has devoted his life to honoring, preserving, and promoting Vietnam's intangible cultural heritage. This is especially true for the oral traditions recognized by UNESCO. In addition to his dedication to his homeland, artist Chu Baohui has actively participated in social activities, contributing resources to help the country. तो आपके बीच प्रोफेसर चू बाओ के जो यहाँ बैठे हैं, और पिछले दिनों मुझे वियतनाम जाने का मौका मिला इनकी इनविटेशन पे। तो वियतनाम में मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा, लेकिन एक शब्द में, एक लाइन में अगर आपको बताना चाहूँ कि वियतनाम में ये किस तरह से पूजे जाते हैं, किस तरह से फेमस हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वियतनाम के शाहरुख खान आपके सामने बैठे हुए हैं। तो वियतनाम के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। वियतनाम के एंशिएंट आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और वियतनाम के एंशिएंट कल्चर को यहाँ तक, भारत तक पहुँचाने और भारत के कल्चर को वियतनाम तक पहुँचाना इनका नेक्स्ट मिशन है। और इस मिशन के लिए ऑनर करते हुए प्रोफेसर चू बाओ क्यों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से हम एक This is a very special memento from India Book of Records. Đây là cái món quà tặng đặc biệt từ tổ chức du lịch Ấn Độ. And there is a symbol of Đây là một cái biểu trưng unity between India and Vietnam cho cái sự kết hợp giữa Ấn for Độ và Việt the Nam cultural exchange trong việc trao of the đổi văn ancient hóa dying art in both the countries. cho cả hai quốc gia. And I thank you and congratulate you for your achievement Cảm ơn and và your sự coming here to India, đóng góp của anh và có mặt trong ngày hôm nay. and you accepted the invitation from India Book Anh of đã chấp Records. nhận lời mời đến đây của tổ chức luật Ấn Độ. Now we will sign an MOU between Bây giờ India là Book of đến Records lúc chúng ta ký cái MOU of India trao đổi văn hóa and World Record Union, giữa ký Ấn and Độ và along Việt with Professor Chu Bao Quế for a mutual understanding between the two countries to exchange để the trao đổi cultural văn heritage hóa và nghệ in thuật của the hai quốc countries. gia thông qua những thành tựu của anh. Ký cái tờ đó chưa? Ký trên đầu nữa. Tờ đó chưa? Đây. Dạ, anh cứ ký ở đâu cũng được. Nija, this is last one. Nija, not yet. Good. Dạ. Mình phải cầm mình đứng lên. Dạ. So congratulations, and for our first step towards
exchanging chúc mừng the cho cultural tuần đầu heritage. tiên của việc trao đổi giao lưu văn hóa của hai quốc gia đã được thành công. And Ký kết thành công. before we conclude, Anh mở cái này any để cho final họ thấy message cái bản mình đã ký. from Professor Chu Bao Kwe? Dạ. Did any final message from him? Dạ. Anh có có chia sẻ gì không? Dạ. Anh cứ nói lời cảm ơn như vậy. Chu Bảo Quế từ Việt Nam sang rất là cảm ơn Dr. Vi và đất nước Ấn Độ những lời chào trân trọng, một tình cảm sâu sắc nhất. Bước đầu Chu Bảo Quế không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu đa tạ tất cả các vị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Yeah. First of all, from the bottom of Professor Chu Bảo Quế, he want to especially thank you for Dr. Vishwarup for Nija India Book of Records and working Asia Book of Records so that we can have a very successful today. And this is our first exchange cooperation between two countries. So we hope that in very near future our activity can keep going on. Thank you. Thank you. Thank you. हमेशा से कुछ अलग करना मेरी जीवन की फितरत रही है और ऐसे में जो कुछ भी मैंने किया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्मॉल पेंटिंग, ये छोटी पेंटिंग बनाने की बात तो बहुत देर की है। इससे पहले मैंने अपने खून से 16 अमर शहीदों के चित्र बनाए। 72 घंटे तक एक जगह बैठ के बिना खाए पिए मैंने 35 पेंटिंग्स बनाए जो कि नारी जगत को समर्पित थे। उससे पहले मैंने गीता के 18 अध्याय पत्थर पे लिखे। 2 साल तक मैंने गीता का काम किया। 14 वर्षों तक मैंने भोजन को त्याग दिया था। ये मेरे जीने का अंदाज है। इसके बाद ये लगा कि जब कुछ अलग करना है तो पता लगा कि कोई छोटी पेंटिंग का रिकॉर्ड नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो मैं कहीं लोगों की नज़र में मील का पत्थर बनूं। परिणाम ये निकला कि मैंने 7 mm की पेंटिंग बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत की और उसके साथ साथ अभी जो मेरा काम चल रहा है वो मैंने 7 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी, बोलना चाहिए तो दुनिया की सबसे बड़ी यानी 1000 स्क्वायर फीट की पेंटिंग, एक कैरेक्टर, एक कैनवास और एक आर्टिस्ट यानी मैंने मूड साफ नरेंद्र मोदी के ऊपर काम किया है। ये मेरे जीने का अंदाज है। इस तरीके से मैं अपनी लाइफ को मोड़ देता हूँ। हमारे दर्शकों के लिए संदेश मैं चाहता हूँ कि हमारे ही समाज से, हमारे ही जीवन में ईश्वर जब अपना कुछ काम कराना चाहता है तो वो अपने स्वरूप में नहीं आता बल्कि हम लोगों के स्वरूप में आता है। परिणाम ये निकलता है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि हमें भी लोग हमारी पुण्यतिथि, हमारा जन्मदिन याद रखें। हमारे बीच के लोगों के जो बड़े बड़े स्टैच्यू और मूर्तियाँ लगती हैं वो हमारे ही बीच के लोग हैं। इसलिए जीवन ऐसा समर्पित करें कि आप जब समाज में आए हैं तो ईश्वर को भी आप पे इस बात का गौरव हो कि ये मेरी संतान है। कुछ ऐसा करके जाएं जिसे लोग मील का पत्थर माने। Sure. Good afternoon, everyone. I am Pericharla Ramya Shri. I believe in a simple statement. Life is too short to be anything but happy. And there's also a quote which inspires me, which is said by Stephen R. Covey. He says, live life by a compass and not by a clock. Talking about my record, I've got the IBR Achiever for doing a motorcycle expedition from Visakhapatnam in Andhra Pradesh to Ladakh and Umlingla, which is the highest motorable road in the world at an altitude of 19,028 feet. I love traveling, and traveling teaches that no matter how much you know, there's always more to learn. I love to travel, explore, network with people, understand the traditions, and live life. Any message that you would like to share with us? Sure. So I would recommend everybody to travel at least once in a year. Take a break, because when you travel and connect with nature, we understand that we are just small pieces of this beautiful creation. And never take life too seriously. Enjoy the things and the little things present around you, and your life will be beautiful. हमें अपने रिकॉर्ड के बारे में बताएं।
I have won 4 gold medals in 70 plus age at national level continuously for 4 years. This is a record. How did you prepare for this record, sir? Actually, I started running in athletics at the age of 65. Then when I was more than 70, then I started relay races. 4 persons they run continuously at national level at 4 places. Continuously I won 4 gold medals. Any message, sir, that you would like to share with us? Yes. The message to the youth and especially the children is, when we can do and achieve this talent, why can't they? They should come forward, and sports is equally important as education in the present scenario. We should go ahead with this. Actually, my record is a written record. I authored my book in Bodo language, namely as a Sumal Garni Galamu Santo. Actually, Bodo is as indigenous and scheduled tribes in Northeast India. In this book, I have recorded the 3 things that football is a heritage game of Bodo nation and Bodo community. Number 1. Number 2, that is a heritage game of Bodo community, and that is a cultures of Bodo community. And by the help of this football, they form the Bodo nation, Bodo nationalism. They started football as a mass communication among the Bodo people. They formed the Bodoland, namely at the present of BTR. I have recorded this on the basis of one football player, national and international indigenous Bodo football player, namely Sumal Goyari, late Sumal Goyari. I have recorded here, and in their book of record, they have given this opportunity by the help of their record book. Thank you so much. Mother, please share a few words about his record with us. He is 2 years old, and he has planted more than 100 trees and lots of plants too. And we are in village in Nilgiris. So any message that you would like to share with our viewers regarding tree plantation and other activities? Sorry? Okay, what do you plan for him next? To plant more trees. Thank you so much. Thank you, ma'am. To survive, you 1 second. Plants can survive without humans, and it's difficult for humans to survive without plants. So we plant a lot of trees, and I wish everyone to do that. 100 trees is just a number for others, but for me, it means a lot to me. Thank you. I made record of fastest kid to white square with the number from 1 to 50. What is the role of your parents in teaching you this? My dad, my mom. I want to thank my papa, mommy, dada, dadi, and other family members. Any message that you would like to share with our viewers? Yeah. What do you plan to become next? What's your goal in life? I can go in maths. As he having a very keen interest in mathematics, he is very familiar with the numbers at the age of 1.5-year-old, and he knows the ones, tens, thousand, and lakh up to numbers. He can do square number up to 120, and he also do the tables up to 30. So he right now he made a record of number 1 to 50 in very less time, in 3 minutes and 50 seconds. But he practiced hard, and he broke his own record. Second time he do in a 2 minutes and 50 seconds. Great. About 2018, I am 5 years and 9 months old. I made record of fastest kid to white square venue from 1 to 50. I also do square venue from 120.
I want to thank my papa, mommy, dada, daddy, and other family members. Thank you. It's about your record. What is your record about? Blindfold, longest blindfold, 2 hours with props. Longest blindfolded dance with using properties like Silambam, Madu, Ninjak and Kavadi, Karakam. Like that, so many properties he is using. 2 hours, 15 minutes continuously he was dancing. How did you prepare him for this record? Nothing, that's all passion. Whenever he has time, even while eating 1 minute break also, he used to dance. So never we practiced anything, but more than 1 hour he can dance with blindfolded. So that's the passion he started this. Your goal in life? Chief Minister. No. Thank you so much. Thank you. All the very best for that. के बारे में हम सबको बताएं. देखिए, ये मेरा दूसरा इंडिया बुक रिकॉर्ड है. पहले मुझे सन 2018 में मैक्सिमम 13 डॉक्टर इन माई फैमिली, जो अब मेरा आंकड़ा 15 का होने जा रहा है. मेरे 2 नाती MBBS पूरा करके इंटर्न हैं, तो ये मुझे 2018 में मिला. और अब जो मिला है, ये मेरी एज है 74 में मैंने BNYS नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की है. और मैंने 2 नई रिसर्च भी की हैं. एक तो मेरे ये बाल 74 में जो दिख रहे हैं, ये वास्तव में काले हैं. मैं कभी कोई खिजाब डाई वगैरह नहीं लगाता. एक इस पर, और एक मेरा नाती है, कहाँ इधर आओ, इसकी एज 13.5 वर्ष है. इस पे भी मैंने एक अपना रिसर्च किया है. इसकी हाइट 6 फुट 2 इंच है. ये मेरी नेचुरोपैथी का कमाल है, ये बाल और ये इसकी लंबाई हाइट. इसका भी मैंने कागज़ आयुष मंत्रालय को भेज दिए हैं. पास होते ही फिर मैं इसमें एक PhD हासिल करूंगा और इसमें योगिक साइंस में PG करूंगा. ये मेरी हार्दिक इच्छा है. तो ये मेरे 2 रिकॉर्ड बने हुए हैं. तीसरा मेरा एशिया बुक रिकॉर्ड का है, वो भी इसी के ऊपर आधारित है. मेरे इस समय मेरे पास 3 रिकॉर्ड हासिल हैं और मैं कोशिश करूंगा, ईश्वर ने अगर साथ दिया तो मैं अभी 2 या 3 और हासिल करूंगा. जी. बहुत बहुत धन्यवाद. अब अपना स्थान प्लीज शेयर अ फ्यू वर्ड्स अबाउट योर रिकॉर्ड विद अस. Myself Vanna Gaur from Kolkata, West Bengal. Basically, I am giving the training, or I am organizing awareness camp for menstruation hygiene. हालांकि स्टार्टिंग में मुझे बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा था, क्योंकि ये टॉपिक ना आप फ्रंटली बोल नहीं सकते हो बोर्डली. तो लोग मुझे कहते थे तुम्हें शर्म वगैरह नहीं आती क्या. लेकिन दो आई वर्क ऑन दिस टॉपिक एंड जनरली जब मैं गांव बस्ती स्कूल कॉलेज में जाती हूँ तो रियली दे गिव मी अ थैंक्स बिकॉज दे वांट टू नो एक्चुअली व्हाट्स इज हैपनिंग एंड व्हाई एंड व्हाट द बॉडी चेंजेस एंड ऑल. और काफ़ी नॉलेज गेन करने में. और एक सेशन मैंने मॉम और डॉटर का भी लिया था. देन मॉम से कि इतनी नॉलेज तो हमें भी नहीं थी कि इतने प्रिकॉशंस और ये सब रखना चाहिए. तो आई रियली लव कि ना मेरे कारण अगर लड़की लोग की लाइफ में परिवर्तन आ रहा है और उन्हें अच्छी हेल्थ मिल रही है तो आई एम वेरी मच हैप्पी. और मेरा एक ही स्लोगन है कि हैप्पी मेंस्ट्रुएशन इज़ कम टू हैप्पी प्रेगनेंसी. और हैप्पी प्रेगनेंसी से कारण हमारा नेशन भी हैप्पी रहेगा और हेल्दी रहेगा. विद दैट थैंक यू. थैंक यू सो मच. वी होप यू कीप ये रिकॉर्ड बन पाया है एंड मैं ये ब्लाइंडफोल्ड सीख रही हूँ अप्रैल 2023 से. आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैम अब साइंटिस्ट बनना चाहते हैं. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट. यू मे टेक थैंक यू मैम. few words about your record with us.
Ma'am, actually I start this blindfold learning since the 30 April 2022. And firstly, I say thank you to my respected trainer, Mr. Anurag Kumar Jaiswal. He trained me, and my parents who support me in all the turning points at my life. Any challenges that you faced while making this record? Yes, ma'am. Can you elaborate that for us? Ma'am, the challenges facing is video shooting and etc. are challenges for making record, and my family support in all the turning point and also I make approx 5 to 6 record. My first record is blindfold quantum speed reading, and then I starting records for making many records. So me and my brother Krishna Modanwal and my sister Radhya Modanwal are try to make many records. Thank you so much. Thank you. You may take your seat. जब मैंने इस रिकॉर्ड को मतलब जब मैं ब्लाइंडफोल्ड सीख रहा था एक्चुअली माई ब्रदर विष्णु गुप्ता एक ही साथ हम लोग ने रिकॉर्ड मतलब ब्लाइंडफोल्ड सीखा था। तो जब पहले तो हम लोग को ये चैलेंज फील हुआ था कि कोई विश्वास नहीं करता था कि हम ब्लाइंडफोल्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था। उन लोग को फिर मतलब विश्वास दिलाने के लिए फिर हम लोग ने कहा कि छोड़ो, जिसको विश्वास करना है वो करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। तो हम लोग ने मेरी सिस्टर आराध्या मोदनवाल, ब्रदर विष्णु गुप्ता सर, हम लोगों ने काफ़ी रिकॉर्ड बना रखे हैं। जैसे मैंने पहला रिकॉर्ड वर्चुअल क्वांटम रीडिंग का बना है, दूसरा रिकॉर्ड मेरा स्टिक मूवमेंट का बना जो एशिया भी है, इंडिया भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी का, और तीसरा मेरा बना है ये ब्लाइंडफोल्ड पेंटिंग का, और फिफ्थ मेरा बना है उसका ब्लाइंडफोल्ड पंचेस का। और मैं अपने पेरेंट्स को, ट्रेनर मिस्टर अनुराग कुमार जायसवाल को, और मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और आपको भी जो आपने मेरे को यहाँ इनवाइट किया। Good afternoon all of you. My name is John Gershon Srinivasa Rao. Basically I am an advocate practicing in Supreme Court present. My record event is I got a vision regarding the entire world. Mother should be honored because every person came from womb of the mother, for which what I did is during the year, since several years I used to honor mothers. During the year 2018, I brought 2018 mothers, old mothers, more than 100 years old also. And we honored all these 2018 mothers in one place with shawls, caps, and we'll give the mementos with their own photographs. And the main event is 2018 feet cake brought to that place, and with one stroke, all this mother with knives cut down with one stroke. This was recognized by the entire world community, the entire world through media has seen that, watched that program, and the Guinness Records, Limca Book of Records, and the present India Book of Records also honored me like this. So my aim is every human being came from the womb of the mother. Mother should be honored, should not go to any old age homes. That is my concept. Thank you so much, Mr. Rao. Good afternoon, everyone. मैं निखिल बोत्रा, founder of Trottle and Explore. I have done a record in 2018, which is fastest Indian golden quadrilateral, which is like 6,000 kilometers in 86 hours 57 minutes on a motorcycle. And I'm holding this record since 2018. And so far, nobody have broken in India Book of Records. And basically, अगर Indian golden quadrilateral की मैं बात करूँ तो it is 5 metropolitan cities: Bangalore, Jaipur, Delhi, Kolkata, Chennai and back to Bangalore. मैंने Bangalore से start किया और end भी Bangalore में किया है. और अब आगे I am thinking of doing all India. I am drawing a India map on a motorcycle, which is to 24,000 kilometers approximately in 90 days, with 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा के साथ.
हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? अगर कोई बाइकर्स देख रहे हो वीडियो या नॉर्मली भी आप लोग चलाते हो तो प्लीज़ सेफ्टी मेंटेन कीजिए। एटलीस्ट एक हेलमेट तो अपन पहन ही सकते हैं, बट वो 100 रुपये 150 वाला हेलमेट नहीं पहनना अपने को। लाइफ है तो यू कैन राइड बाइक एनी डे, एंड एनी बाइकर्स सीइंग दिस, राइड सेफ, बी सेफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव यू पीपल आर गिविंग। वीडियो भी भेज देंगे और मैं तो खैर देख पा रहा हूँ। और हाईवे पे गाड़ी है और ये पैसेंजर सीट खाली है पूरी तरह से, और पैसेंजर सीट में बैठ के सिर्फ एक हाथ से अपने स्टीयरिंग को पकड़ के तब चलाते हुए आ रहे हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू बी न्यू रिकॉर्ड, लेकिन उसके लिए हम पूरा वेरीफाई करेंगे सारे इनके वीडियोज़ एंड सारे जो हमारे रिकॉर्डर पूरी करेंगे तभी इनका रिकॉर्ड देंगे। अब पूरा आ रहा है, बैठे से पैसेंजर सीट में है एंड कंट्रोलिंग द कार वाइल सिटिंग ऑन पैसेंजर सीट। इसमें ट्रैफिक रोकते नहीं आपको? ट्रैफिक पुलिस रोकते हैं, पूछते हैं और फ़ोटो वोटो मेरा निकलते और छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, चलान नहीं हुआ ऐसे? अभी तक तो नहीं किया। आज आप लोग में से कोई ड्राइव करके चला के देख सकते हैं चलान होता है कि नहीं? इनका तो नहीं हुआ, मुंबई से यहाँ तक आया है। पूना से नहीं, ये काफ़ी फेमस है इस चीज़ के लिए ऑलरेडी। हालांकि मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्डर हूँ। आप फेमस हो सकते हो, लेकिन एक्सीडेंट का 99% और चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि ब्रेक जो है और स्पीड जो है। हालांकि एक्चुअली वो मेरे पैर में सब बैठता है और मैं यही नहीं, ये तो नॉर्मल है। मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन 11 साल हुआ मुझे, अलग अलग तरीक़ों से मैं कार चला लेता हूँ। ऐसे 10 है, ऐसा मैं रिवर्स भी चला लेता हूँ। आप लोग हाथों से चला लेते हो, भगवान की दया से मैं पैरों से चला लेता हूँ। आप ड्राइवर सीट पे बैठे होते हो तो मैं साइड सीट पे भी बैठकर पैरों से चला लेता हूँ। अभी फ़िलहाल हमारा महाराष्ट्र में एक जरांगे पाटिल करके मोर्चा निकला था पूना से मुंबई, तभी भी मैं वैसे ही गया था पैरों से। ऑल इंडिया मैंने रिवर्स कर चुका हूँ और अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं है। इनकी कला है। टैलेंट तो है सर, लेकिन रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है ना ये। आपका टैलेंट है, ठीक है सर जी, ऐसा तो कोई इसमें लिखा नहीं है कि गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठकर आप कार चलाइए। सर अगर ड्राइविंग सीट पे आप नहीं चलाओगे तो ड्राइविंग सीट तो होनी नहीं चाहिए थी इसमें। हाँ, बात सही है आपकी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड होल्डर आया था। टैलेंटेड हो अब, हम ये नहीं कह रहे आप टैलेंटेड नहीं हो, लेकिन ये ड्राइविंग के वो भी मना नहीं कर रहे। ऐसा हो चलान जैसे अब विदाउट ड्राइवर के लिए कार आ रही है ऑटोमेटिक, इसमें ना इसमें एक आपकी जो टेस्ला कंट्रोल है आपके पास, वो अगर बगल वाली सीट में हो तो ठीक है। इसमें स्पीड हो गया, ब्रेक हो गया, वो आपके कंट्रोल में है नहीं। आप यहाँ पे बैठे, अचानक कोई आ जाए, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? अभी पुणे से लेके यहाँ तक 4 स्टेट होता है। 4 रिवर्स में आया क्या? नहीं, अभी सीधा है। पैसेंजर सीट में बैठ अभी ये सर जी ड्राइवर सीट है और ये बाजू का सीट। और यहीं से हैंडल को ब्रेक कैसे लगाते थे? एक पैर इधर, एक पैर उस तरफ डाला है, जो कि मेरे पैर में क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर तीनों रहता है। लेफ्ट साइड में जैसे लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, कुछ ड्राइविंग सीट स्टीयरिंग के पास है बस। और आप दोनों पैर उधर करके नहीं, एक पैर उस तरफ है। और हालांकि हिंदुस्तान का कौन सा भी गाड़ी में वैसे ही चला लेता हूँ, खाली यही कार नहीं। सर पहले भी मीडिया में आपकी कोई पिक वगैरह आई है, आपकी वीडियो आई है? बहुत सारे आई, बहुत फेमस। इसमें नहीं, आपके पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास एक बच्चा आया था आज से करीब 15 साल पहले, उसका नाम था तथागत अवतार तुलसी। 5 साल की उम्र में वो 10वीं देना चाहता था, 10th क्लास पास करना चाहता था। तो सबने बोला जैसे आप बोल रहे, मैं भी यही बोल रहा था उनको, ये तो कानून के खिलाफ है, कानून में ही नहीं। 5 साल का खुद आपकी उम्र, आप 10 साल का 10th कैसे पास करेंगे? वो बच्चा कहा कि मेरे पास टैलेंट है, आपके पास नहीं है, आप नहीं कर सकते, दुनिया नहीं कर सकती, मेरे पास तो टैलेंट है तो मैं करूँगा। तो उसने अप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उसको दे दिया मंजूरी, और अबाउट आई थिंक 6 साल की उम्र में 10वीं पास की और
15 साल की उम्र में पीएचडी करके आईआईटी में जाके पढ़ा। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे स्पेशल टैलेंट में सर वो मेमोरी की बात है। नहीं मैं वो नहीं, में जब कानून ही नहीं है नहीं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कभी कभी कानून तो एक चीज़ होती है कि जो सबके ऊपर लागू होती है। तो ऐसे भी हमारे पास रिकॉर्ड होल्डर हैं जिनके हाथ ही नहीं है, लेकिन उनको स्पेशल परमिशन मिला है, वो भी वैसे ही ड्राइव करते हैं जैसे बाकी लोग ड्राइव करते हैं, लेकिन उससे पहले उनका टैलेंट का पूरा टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि पहली नज़र में तो जिसके हाथ ही नहीं है वो कैसे चलाएगा, है ना। तो इस तरह से कई बार कुछ लोग ऐसे अनयूजुअल होते हैं। आप अगर ऊपर अभी गए होंगे तो देखा होगा कि एक आदमी ने अपने सिर के ऊपर कई सारे मटके लिए थे। तो पहली नज़र में तो लगता है कि ये मटका गिरेगा सभी लोग एक्सीडेंट हो जाएगा। एक लेडी यहाँ पे आई थी, खूब सारे सांप लेके आई थी। कानून के नज़र में सांप लेके घूमना अलाउड नहीं है ना, आप सबको पता है। लेकिन अभी कोबरा भी लेके आई थी, आपने पता नहीं देखा कि नहीं, कोबरा सांप लेके आई थी। लेकिन उन ऐसे लोगों को स्पेशल टैलेंट के दायरे में लाके उनको खास परमिशन दी जाती रही है ना। खास कभी तो लोकल लेवल पे देते हैं परमिशन जब कन्विंस हो गए, ठीक है ना। चाहे वो सांप वाले इंसान हो कि वो सांप छूटता तो कोबरा था, काट ही लेता, पहली नज़र में तो आता। या ऊपर जो कई मटके लगा के उसने 15 मिनट तक डांस किया, ठीक उसी तरह से इनका भी जो टैलेंट है। हालांकि जो आपका एक क्वेश्चन है कि लोगों के एक्सीडेंट के चांस बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी समझना होगा कि जो लोग 2 हाथ और 2 पैर चलाते हैं, ऐसा नहीं कि वो एक्सीडेंट नहीं करते, वो भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हमें लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, जो आपका प्राइम कंसर्न है। आपका प्राइम कंसर्न यही है कि लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना सर चाहिए। इनको देख के जिसको भी 18 प्लस को लाइसेंस बन जाएगा वो इसी तरह ट्राई करने की कोशिश करेगा। हाँ, वो देखिए प्लस एंड माइनस है। 18 प्लस कोई मैं नहीं समझता कोई बहुत मैच्योर हो जाता कोई भी, तो वो स्टार्टिंग होती है उसकी, ठीक है ना। जिस तरह से आप यूँ मानिए कि एक जिमनास्ट होता है जो, या एक सर्कस में करतब दिखाते हैं, ऐसे लोग होते हैं, तो हम उनको देख के हम इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन हम खुद नहीं, मतलब कम से कम मैंने तो सांप नहीं पकड़ा था, जबकि मुझे लग रहा था कि कितना अच्छा लग रहा है एंड आई वाज अप्रिशिएटिंग। तो ऐसा नहीं करेंगे सर मैं सही है, सांप पकड़ना अपने आप को रिस्क में डालना, लेकिन आप उल्टी ड्राइविंग कर रहे हो, दूसरे को रिस्क में डाल रहे हो। हाँ, वो बात है। ठीक है ना, मैं सामने आ जाऊँ, मैं उसमें अब स्मोकिंग करते हो आप, पब्लिकली स्मोकिंग प्रोवाइडेड है, ठीक है जी। अब उसका क्या, स्मोकिंग आप कर रहे हैं, स्मोकिंग जोन बना, आपको नुकसान है उसका, पब्लिकली करते हो तो हमें भी नुकसान है। लेकिन इसीलिए इसमें डिबेटेबल ये है कि हो सकता है कि ही इज मोर कंफर्टेबल व्हेन ही इज इन, इनका कैनेस्थेटिक एबिलिटी कुछ ऐसा ही है कि जितने कंफर्टेबल आप हैं जब आप ड्राइविंग सीट में, उतने कंफर्टेबल ये हैं जब ये पैसेंजर सीट में। बाकी सर लोगों के अकॉर्डिंग तो चलान होना चाहिए, लोगों के अकॉर्डिंग चलान होना चाहिए। वैसे ये टैलेंटेड है, ठीक है, ये इतनी दूर से कोई सोच भी नहीं सकता इतनी दूर से गाड़ी चला के आएंगे, साउथ से गाड़ी चला के आ रहे हैं। ना तो कोई ये सोच सकता है, ना कोई ये सोच सकता है कि एक भी चलान नहीं हुआ, ये भी मिरेकल है जी, है ना। मैं खुद हैरान था, तभी मेरा पहला सवाल था चलान हुआ कि नहीं, आप ही का पहला सवाल था, है ना। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन्हीं तरह के टैलेंट का एक वो है कि जो दायरे के बाहर जाते हैं, उन्हीं का संकलन है, ठीक है ना। कि दायरे के बाहर नहीं जाएंगे तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा, खतरा है, आई एग्री, बट दायरे के बाहर जाने में जितने लोग हैं उनका कलेक्शन है ये। तो खैर, इसके तहत आप तो ड्राइव करते हुए आए, तो आपका ऑनर हमारे पास है आप सबके बीच में। इनका जो पिछला रिकॉर्ड था जो कि पूरे मीडिया में आया था, उसके लिए आपको सम्मानित किया जाएगा, प्लीज़। आप अगर राइट टाइम पे होते तो भी अच्छा लगता, लेकिन ये वीडियो भी लोगों तक पहुंचा देंगे तो थैंक यू।